بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک۔ ایک روایت میں آیا ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے کی ہوئی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئے اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیدا کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ ماہ رجب کی 27ویں رات میں اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، وہ رضوان سے کہیں بیعت کی عرائش کریں اور حور غلمان سے کہو کہ وہ اپنے تن زم اور زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں، آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ ملائکہ دراخ اور دوزخ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دیں۔ یہ حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور غلمان اور ملکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درمیانی میں سوار ہوا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا۔ ایک سونے کی تیش میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان اور حکمت سے بھرپور اس کو مقام پر رکھ دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا، اے جبرائیل، بیعت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ، میرے حبیب قریشی کو میرے درگاہ الہی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، جو حرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب کو ام ہانیہ رضی اللہ عنہ کے گھر بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا اور کہتے تھے، اے حبیب مقبول، اٹھو، آج شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے لیے اٹھانے سے اور میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آ کر مسجد کے دروازے پر لایا تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ میں اس کا مائندہ آدمی کے ہاتھ، اور سرانی اس کی مائندہ گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مائندے چتر کے، اور سینہ اس کا مائندہ شیر کے، اور دونوں پر اس کے مائندہ پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت بردان سے متصل جڑی ہوئی تھی۔ بس سوار ہونے میں نے ذرا تحمل کیا، بس اسی وقت حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سے پہنچا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے حبیب سے پوچھو کوئی توفیق کرنے کا کیا ہے، سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج مجھ کو اللہ تعالیٰ سے اس نعمت عظمت سے سرفراز ہے اور میری سواری کو براق بجائے، لیکن میں اس نیشے میں سوار ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے گئی رکھی ہے، 3,000 برس کی راہ
पुल सरात की दोज़ख पर रखी है तो क्यों तय करके मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। अल्लाह ताला से हुक्म हुआ, ए हबीब मेरे कुछ गम न कीजिए। जिस तरह आज मैंने तुम्हारे लिए बुराक भेजा है इसी तरह तुम्हारी उम्मत के वास्ते हर एक कब्र पर बुराक भेजूंगा और सबको बुराक पर सवार कर कर के पुल सरात से पार तारूंगा और मैं अपनी शान के मुताबिक 30,000 बरस की राह एक पुल में तय कराऊंगा कर मंजिल मकसूद तक पहुंचाऊंगा। जब ये हुक्म हुआ तब फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक को देने भागने लगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक से कहा, ए बुराक तू नहीं जानता ये पैगंबर आखिरी हैं। ये सुनकर बुराक ने अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने बहुत बुराक और भी मेरे सिवा पैदा की हैं और सब दिमाग मोहम्मदी रखते हैं। अब अर्ज़ है कि मेरी ये है क़यामत के दिन भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ही बैशत पर सवार हों ताकि क़यामत के दिन सब बुराकों पर मुझको फ़ख्र हासिल हो। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब बुराक ने फ़ख्र से अपनी पीठ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर की। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। दाएं बाएं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के रकाब में हाजिर थे। मक्का में और अबे ज़मज़म मकाम इब्राहिम के पास जाकर एक ही लहते में बैतुल मुक़द्दस में पहुँचे। फरमाते हैं, सना राही में एक आवाज़ दानी तरफ से आई, एक आवाज़ बाएं तरफ से सुनी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहो, तुमसे कुछ सवाल करूँगा। आपने इस आवाज़ का कुछ ख्याल न किया और वहाँ से आगे बढ़े। फिर देखते हैं कि एक बुढ़िया अपने तन जेवरात और लिबास से आरास्ता करके खूबसूरत बनकर आपके सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखो। सो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा और आगे बढ़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, और दाएं और बाएं तरफ कैसी आवाज़ें आती हैं? बुढ़िया सिंगार किए हुए कौन खड़ी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आवाज़ दाएं तरफ यहूदियों की थी और अगरचा आप जवाब देते अपने तो सब उम्मत आपकी यहूदी हो जाती। जो आवाज़ के बाएं तरफ से आती वो नसरती की इसाहत और यहूदियों से बढ़कर थी। तो जवाब में देते तो सब आपकी उम्मत एक नसरानी हो जाती और बुढ़िया सिंगार किए करने वाली दुनिया थी। आप इसकी तरफ देखते तो सब उम्मत आपकी गुलबा दुनिया में हलाक हो जाती। इसके बाद 3 प्याले लाए गए, एक प्याला शहद का, दूसरा शराब का, तीसरा दूध से भरा हुआ। ये तीनों प्याले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को उठाया और उसका सारा दूध पी गया, बाकी की तरफ कुछ ख्याल ना किया। ये देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बहुत खूब किया जो आपने दूध का प्याला उठाया, आप इसका दूध पी लिया। दूध से मुर्दान है कि दीन इस्लाम और इसमें तरक्की। फिर वहाँ से दूसरे मकाम में आगे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इस जगह 2 रकात नमाज पढ़ें, क्यों ना कि ये जगह आपके लिए सजाई गई है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर तक वहाँ नमाज अदा की और फिर उसके बाद बुराक पर सवार हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत है जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, ये दोज़ख में है, अपने शोहर को नाखुशगवार रखती है, बेहुक्म और शोहर के इधर उधर फिरते हुए लटती है, फरिश्ते बदशिकल आग से गिरज़वा इसको मारते रहते हैं। तो आपने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मुनाफिक हैं। फिर इसके बाद एक और
को देखा और आग जंगल में कैद और आग इसको सख्ती से जला रही है, तमाम बदन जख्म और माइंदा हैं। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा आपकी नाफरमानी क्या वजह है? तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता था, बेअदबी करता था, नताशा गुफ्तगू करता था। फिर वहाँ से आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे आखिर में गए और आसमान पर पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्त किया, मलका से पूछो तुम कौन हो? तो आपने निहायत तालीम और तहरीर से कहा ए फरिश्तों सरदार हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। चनाचा तमाम फरिश्तों ने आकर अस्सलाम अलैकुम कहा, फिर आपसे आकर मुनाफिक की और फिर सब के सब कहने लगे मरहबा या रसूल अल्लाह, आपकी तशरीफ़ आवार आसमान रोशन हो गया। मैं आपसे आगे बढ़ूँ तो वहाँ ही हज़रत यूही अलैहिस्सलाम पैगम्बर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह ने आकर तकबीर अस्सलाम अलैकुम कहा, फिर कहने लगे मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्की दुनिया से मुराद इसमें रुतबे का तारीन करना, ना कि इसके लिए आने की खुशी, ना जाने का गम। खुदा को खुदा जाना ये है कि शिरक ना करे, रसूल को रसूल जाना ये है कि इनके सिवा किसी की पैरवी ना करें और मखलूक के साथ ज़रूरत से ज़्यादा इख्तिला मेल झूल मत रखें। ज़्यादा इख्तियार और ज़्यादा मसरूफियात का सबब होता है। औरत का महरूम मर्द से मिलाओ, नरम गुफ्तगू करना भी दाखिल बदकारी है और इसका बारीक कपड़ा पहनना भी बरहान और बुरा हुक्म में आता है। गुनाह के बाद नेहमत में भी तौबा की शाख है। दुनिया में आराम का ख्वाह बेवकूफ़ी और अकल से डरो, ज़िक्र जहर से इस कदर परहेज़गी करना चाहिए कि खाना शुरू करते और कुछ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। दौलतमंद की मुसीबत ज़हर कातिल है और इसके जरापे लुक़मे दिल को स्वाह करने वाले हैं। काफिर के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ादी और खौफे खुदा और मोमिन की आवाज़। आए अल्लाह रजब शुमान में हम सब पर बरकतें नाज़िल फरमा और हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा।